Welcome once again to the basics. You know, not every day you think that you will have a teacher to the magnitude of this person, Mr. A.K. Purwar, who has spent over 40 years in the banking sector. And I think we are privileged that he's our guru, he's our teacher today, and he has agreed that he will help us understand the banking sector in a very simple, dil se conversation with Omkara. थैंक यू पुरवार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ रहा है आपको देख के। थैंक यू सो मच। इंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दी इस तरीके की। आपको शायद आभास नहीं है कि माय फर्स्ट लव इज टीचिंग। Fortunately, after teaching in the Allahabad University for almost 2 years, I decided to join the bank. But still, even post my retirement, I joined NRM also. So even today, the first love continues to be more on teaching side. Lovely, sir. Lovely. As a disclosure, I should tell you that I have no business relationships at all with Purwarji. Both of us stay in the same building, and I was, of course, enamored by Purwarji always when he used to walk, and he does his regular walking every single day. तो मैंने एक दिन इनको पकड़ के बोला कि सर आपको हमें समझाना है बैंकिंग सेक्टर. So that is our connection. But thank you, Purwaji, so much. Before I start discussing anything about banking sector, sir, आप प्लीज 2 मिनट 5 मिनट लीजिए आपके बारे में बताने के लिए. एंड वी आर हैप्पी. आप आराम से हिंदी में बात कीजिए, पूरा दिल से बात कीजिए, जैसे आपका मन कीजिए वैसा आप बात कीजिए, पर थोड़ा सा आपके बारे में बताइए प्लीज. मैं एक छोटे से शहर को बिलोंग करता हूँ, इलाहाबाद को, जहाँ पर मेरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और एजुकेशन कंप्लीट होते ही मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का चांस मिला. तो एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 19 प्लस I started teaching in graduation and post-graduation classes in the university. As luck would have it, I was appearing in competitive exams and I got an opportunity to join State Bank of India. And then I joined the State Bank of India, leaving the university. And I spent almost 40 beautiful years in the State Bank of India. And joining as a probation officer, I rose to be its chairman. A great privilege, a great honor, but a wonderful institution to work for. और उस 40 साल में उस इंस्टीट्यूशन में बहुत कुछ सीखा. उस इंस्टीट्यूशन ने बहुत अपॉर्चुनिटीज दी और उन अपॉर्चुनिटीज में उसको काफी कुछ करने का मौका मिला. So 40 years you will only with SBI. Even today, if SBI gives me a chance, I don't mind going back to them. It's such a wonderful organization to work for. Wow. And you were chairman also, right? They are from period 2002 to 2006. Wow. Very, very nice, sir. It's an honor. So what are you doing these days, sir? Now you'll be... Well, post-retirement, I set up a couple of organizations with different industry houses, private equity fund, non-bank finance company, renewable energy business. But at the age of 69, 70, I gave up all my full-time work and now work as an independent director in leading companies in various sectors: pharma, financial services, steel, power, fintech, so on. ये आप इतनी भूख कहाँ से लेके आते हो सर? ये सीखने वाली भूख. 40 साल एसबीआई काम करने के बाद भी अभी आप डायरेक्टर्स हो इतने अलग अलग इंडस्ट्रीज के पास. ये एक भूख होती है, बहुत बड़ी चीज है. ये कहाँ से लेके आते हो आप? मैं भूख नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि शायद God has given me different kinds of opportunities at different points of time. And whenever such opportunities came up, अब मैं आपसे शेयर करूं कि आज से 16 साल पहले मुझको किसी बड़े इंडस्ट्री हाउस बड़े अप्रोच किया कि उनका मैं रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस सेटअप कर दूं, तो मैंने उनको मना कर दिया कि मुझे पावर बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है. He persisted. When he approached me 3 times in a period of only 1.5 months, I said, I do not know what you are seeing in me, which I am not able to see. So his answer was very typical. We have seen you implementing technology plans in State Bank of India. And we would like same kind of
commitment and zeal Wow. in setting up this business. And that the business was very successful. I devoted another 9-10 years there, although as a part-time, but pretty active part-time chap. Very, very nice, sir. It's a privilege, Purvarji. What can I say? Thank you so much, first of all, for being our teacher. Now, talking about banks, which you are the master. ये ना मुझे बहुत डर लगता है सर, ये बहुत बड़े बड़े जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं, कुछ कुछ ऐसे जार्गन्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कासा, स्लिपेजेस, जीएनपीए, एनएनपीए, लायबिलिटी फ्रेंचाइज, स्लिपेजेस, रीस्ट्रक्चरिंग, मूवमेंट ऑफ एनपीएस. आप थोड़ा सा प्लीज अपने तरीके से सिंप्लीफाई कीजिए. हमें बस इतना जानना है कि बैंक पैसा कैसे कमाता है और ये क्या होता है, बिकॉज आपका जो P&L, बैलेंस शीट, एसेट क्वालिटी होता है, वो सब अलग होता है एक नॉर्मल हम जो मैन्युफैक्चरिंग का धंधा देखते हैं, राइट? वरुण जी, आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है और इस क्वेश्चन को मैं अगर शायद एक दिन भी पूरा एक्सप्लेन करूं तो शायद कम पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको बैंकिंग के बारे में और जो आपने दूसरे सवाल उसमें साथ में किए उनको एक एक करके प्रयत्न करता हूं कि उनको डील करूं. थैंक यू. बैंकिंग एक बड़ा मजेदार बिजनेस है. इसमें क्या है कि आप जो है जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स के रूप में पैसा लेते हैं और आप जनरल पब्लिक को प्रॉमिस करते हैं कि वो पैसा आप उसको ब्याज समेत वापस करेंगे और फिर उसी पैसे को आप लगाते हो डिफरेंट बिजनेसेस में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट सर्विसेज में और वो हायर रेट पे आप पैसा वो उसमें देते हो. डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क इवैल्यूएशन यू फिक्स अप द इंटरेस्ट रेट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टमर्स. जो इन दिनों के बीच में स्प्रेड होता है, कॉस्ट ऑफ फंड्स और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट और कॉस्ट ऑफ फंड जो आप पे करते हो और इंटरेस्ट जो आप रिसीव करते हो, इसके बीच में जो गैप होता है उसी में आपको काम करना होता है. वही आपका, उससे आपको अपना खर्चा भी मीट करना पड़ता है और उसी में आपको प्रॉफिट भी जनरेट करना. इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन डिपॉजिट रेट करता है उसमें इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, इतना मार्केट में ट्रस्ट होना चाहिए कि आदमी विश्वास कर सके कि मैं जो पैसा यहाँ जमा करूंगा ये मुझको अपना पैसा ब्याज समेत जब मैं चाहूंगा, जब मेरी जरूरत होगी तो वापस मिल जाएगा. तो इसमें जो ट्रस्ट फैक्टर होता है वो एक बहुत ही क्रिटिकल रोल बैंकिंग इंडस्ट्री में या बैंक की सक्सेस में प्ले करता है. अगर आप कोई भी बैंक अगर मार्केट में ट्रस्ट लूज कर जाता है और तो उसके डिपॉजिट उसके पास नहीं रुकते हैं और उसके बैंक की क्लोजर की स्थिति बहुत जल्दी आती है. हम लोगों ने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहां पर कि बैंक क्लोज होने पर भी येस बैंक का इंसिडेंट हुआ था. आपका रॉ मटेरियल है ना सर, डिपॉजिट रॉ मटेरियल है. अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आगे काम क्या होगा? तो बैंक, आपने बड़ा सही कहा, डिपॉजिट जो है बैंकिंग सिस्टम का रॉ मटेरियल होता है. जब हम उस रॉ मटेरियल को जितना ज्यादा ले सकते हैं और जितने कॉस्ट एफिशिएंट तरीके ले सकते हैं उतना ही हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं. आपने एक वर्ड यूज किया था कासा, आपने वर्ड यूज किया था एनपीएस वगैरह, तो ये सब बड़े रिलेटेड टर्म्स हैं. अगर आप जो डिपॉजिट लेते हो, डिपॉजिट में भी बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं. करंट अकाउंट है जिसमें कि कस्टमर को आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता. सेविंग बैंक्स हैं जिसमें कि आपको नॉमिनल थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट करना पड़ता है और डिपॉजिट जब चाहे तब पैसा जरूरत के वक्त निकाल सकता है. और फिक्स डिपॉजिट में फिक्स मैच्योरिटी में आपको इंटरेस्ट समेत पैसा वापस करना. होता क्या है कि अगर आपके पास जो डिपॉजिट मिक्स है, बैंकिंग सिस्टम की जो सक्सेस है, अगर आप प्रॉपर्ली लायबिलिटी साइड मैनेज करें तो उसी से बैंकिंग सिस्टम की सक्सेस की शुरुआत होती है. अगर आपके करंट अकाउंट और सेविंग बैंक, कासा डिपॉजिट्स, अगर वो आपके पास अच्छी मात्रा में है, अच्छी प्रोपोर्शन में है, 30%, 40%, 50% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, और आज की एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स अगर कंट्रोल में है, जितनी कम कर सकते हैं अगर कम है, और अगर कासा डिपॉजिट ज्यादा होंगे तो कॉस्ट ऑफ फंड्स हमेशा कम होगी, तो उतने ही आपका एसेट साइड में आपकी ताकत बढ़ जाती है. वो इस तरह से बढ़ जाती है कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स डिपॉजिट से वो अगर कम है तो आप अच्छी क्वालिटी के कस्टमर, भले से वो आपको थोड़ा कम ब्याज दें, वो आप अपने एसेट्स में, बुक्स में ला सकते. तो जनरली आप देखेंगे कि वही बैंक सक्सेसफुल होते हैं
सबसे बड़ा केस जो आप देखते हैं आज कि एचडीएफसी बैंक की सक्सेस कहाँ पर है, उनके जो कासा डिपॉजिट्स हैं, उनके लो कॉस्ट डिपॉजिट्स हैं, वो उनके पास बहुत अच्छे हैं, वो ट्रिपल ए रेटेड सर्विस कस्टमर्स को देते हैं और उस वजह से उनके पास वो डिपॉजिट बहुत आते हैं और उस वजह से उनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है कि एक अच्छी क्वालिटी कस्टमर को वो बहुत ही कम्पिटिटिव रेट्स पर लोन दे सकते हैं। तो ये बैंक का जो असली काम है, वो सक्सेस की जो असली जो मूल है, जो जड़ है, वो ये है कि आप कासा डिपॉजिट्स, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स जितनी अच्छी मात्रा में अपने इंस्टीट्यूशन में अट्रैक्ट कर सकें, जितना आप कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, रॉ मटेरियल जितना आप सस्ता आप अपने पास ला सकें, वही वो पहला स्टेप होता है आपकी सक्सेस का। तो मैं दो चीजें समझा, वहां आप गड़बड़ा गए तो फिर गड़बड़ होगी। गॉट इट। नहीं, मैं दो चीजें समझा सर आपसे। एक तो मैं समझा कि जो निम्स है कि पैसा आएगा तो मैं उस पर कॉस्ट दूंगा और जो पैसा आया उसको मैं आगे दूंगा तो उस पर इंटरेस्ट मार्जिन मुझे मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा मुझे। तो निम्स हो गया कि इंटरेस्ट जो रिसीव्ड है और इंटरेस्ट पेड है उसका हो गया, वो निम्स हो गया। बट जो सबसे जरूरी चीज है जो आपने बोला रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कहां से आएगा? रॉ मटेरियल आएगा कि अगर आपके पास करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जिसको कासा बोलते हैं, वो कासा जितना ज्यादा होगा बिकॉज उस पर इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो वही फ्रेंचाइज जिसके पास कासा ज्यादा होगा उसको ज्यादा बेनिफिट होगा, राइट? दूसरा सर, ये जो सबसे जरूरी चीज है जो आज के टाइम में आई थिंक बहुत कंफ्यूजन भी करती है लोगों को, रिसेंटली एसबीआई के रिजल्ट्स के साथ हुआ, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं देखा, ये स्लिपेजेस हुआ, रिकवरीज हुआ। आप थोड़ा सा अगर हो सके तो हमें थोड़ा सा कि हाउ डज इट कैलकुलेटेड, एसबीआई का रिजल्ट आया, मुझे याद है सर, 27-28 हजार करोड़ का नंबर डाल दिया, स्लिपेजेस का था 4,000-5,000 करोड़। आधे लोगों को मालूम ही नहीं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये क्या होता है सर, प्लीज? एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा सा उसके पीछे बेस में जाना चाहूंगा। हाँ जी। कि जब आप एसेट्स क्रिएट करते हैं, एसेट्स क्या क्रिएट करते हैं, आप डिफरेंट कस्टमर्स को आप लोन देते हैं। आपने इंडस्ट्रीज को लोन दिया, बिजनेस को लोन दिया, हाउसिंग लोन दिया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन, और उनकी आप रिकवरी करते हैं और रिकवरी के साथ इंटरेस्ट रिकवरी आती है। यही आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बिकता है, फिनिश प्रोडक्ट बिकती है और आप उससे पैसा कमाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि अगर आपका जो पैसा टाइम पर आना चाहिए, अगर वो टाइम पर नहीं आता है, या मान लीजिए बिल्कुल, जैसे बहुत सारे केसेस हैं सालों पैसा नहीं आ पाता। डीएफएचएल एक कैसा है जहाँ डीएफएचएल एक कैसा केस है जहाँ पिछले 4 साल से एक पैसे किसी भी बैंक को कुछ भी नहीं, या बहुत से केसेस हैं हमारे सिग्नल्स के, जो बहुत सारे केसेस, दिल्ली के स्टील मिल्स के केसेस हैं, या बहुत बड़े पुरानी पावर यूनिट्स के केसेस हैं जहाँ पर पैसा उन्होंने ले लिया लेकिन पावर का जनरेशन नहीं कर पाए, गैस बेस्ड पावर में, और वो पूरा अकाउंट खराब। होता क्या है कि अगर आप लोन देते हैं, अगर इंस्टॉलमेंट जो उसकी ड्यू है या पैसा जिस दिन ड्यू है उसके 30 दिन के अंदर नहीं आता, ड्यू डेट के अंदर, तो उसको आप स्लिपेज मानते हैं और उसके ऊपर आपको प्रोविजन करना पड़ता है। अगर 6 महीने के ऊपर नहीं आया तो उसके ऊपर आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोविजन, हायर प्रोविजन करना पड़ता है। साल भर तक पैसा नहीं आया और भी ज्यादा प्रोविजन करना पड़ता है। अगर उसके केस में सूट फाइल हो गया तो आपको 40 to 50% प्रोविजन करना पड़ता है। ये स्लिपेज होती है। एसेट जो है, अच्छे जो एसेट्स हैं, जैसे जैसे उनमें डिफॉल्ट का टाइम बढ़ता जाता है, स्लिपेज बढ़ती जाती है। अगर स्लिपेज, अगर स्टेट बैंक के केस में 4-5 हजार करोड़, 10,000 की करोड़ की स्लिपेज एक साल में, एक क्वार्टर में, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर एक छोटा सा बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, उसकी 1,000 करोड़ की स्लिपेज बहुत बड़ी हो सकती है। तो अगर जैसी बैलेंस शीट साइज हो उसके हिसाब से जो स्लिपेज है, किस टाइप की स्लिपेज है, कैसी स्लिपेज, तो स्लिपेज का मतलब पैसा आएगा ही नहीं कि आएगा? स्लिपेज का मतलब ये है कि आपने जिस दिन ड्यू हुआ उसके 30 दिन के अंदर पैसा नहीं आया, फर्स्ट स्लिपेज हैज टेकन प्लेस। 90 डेज के अंदर पैसा नहीं आया, आपके सेकंड में चला गया। साल भर के अंदर पैसा नहीं आया, थर्ड में चला गया, और उसी हिसाब से प्रोविजन बढ़ता जाता है। तो ये स्लिपेज कहलाती है कि ड्यू डेट पे अगर पैसा नहीं आए तो 30 दिन के अंदर अकाउंट विल स्लिप इनटू अ सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल और लॉस करें।
Got it. और हर कैटेगरी का प्रोविजन रिजर्व बैंक के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से और आपके अपने असेसमेंट के हिसाब से अलग अलग और बढ़ता है। Got it, got it. तो सर दो चीजें, मैं कुछ नोट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ओके कि एसबीआई का जो नेट स्लिपेजेस है FY21 में 0.5% है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 1.4%, एक्सिस बैंक 1.6% एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ईयू बैंक, बंधन बैंक। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? मैं आपको ऐसी कहानी सुनाता नहीं कभी, लेकिन चूंकि मेरे रिटायरमेंट हुए 15 साल हो गए हैं, तो आज मैं आपको एक कहानी स्टेट बैंक की सुना सकता हूँ। हाँ प्लीज सर। मुझे याद है कि आज से करीब 25 साल पहले मैं मिडिल लेवल का एग्जीक्यूटिव था, तो बॉम्बे में प्रोविजंस डिस्कस करने के लिए आया कि साहब जो है मेरी ये एसेट्स हैं बड़ी बड़ी और इसमें ये प्रोविजंस में करना चाहता हूँ। डिस्कशन चलते रहे, थोड़ा बहुत उन्होंने बढ़ाया, मैंने मान लिया। इसके बाद डिस्कशन खत्म हो गए, अकाउंट्स मैंने सारे डिस्कस कर लिए। उसका जो मेरे बॉस जो सामने बैठ के डिस्कस कर रहा था, उसने बोला मिस्टर पुवार, यू हैव टू मेक 5 crore provision in this account and another 10 crore provision in that account. I said, why? These are all okay accounts. Why should I make a provision there? He said, no, Mr. Puwar. We would like to make provisions. If next year you find that things are okay, we'll look at it. But we have to make provisions. तो मैंने उसका चेहरा देखा, मैंने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं प्रोविजन की, आई फील दैट दिस अकाउंट्स आर ओके अकाउंट्स. नो मिस्टर पुवार, यू हैव टू मेक अ प्रोविजन. And he literally forced me to make a provision, although there was no need for a single rupees provision in that account. I asked him what subsequently, and after the formal discussion, I asked him. He said, no, Mr. Puwar, we would like to make an aggressive provision. हम ये नहीं चाहते कि आपका अगर असेसमेंट है, हमारा असेसमेंट सही है, लेकिन अगर कोई सरप्राइजेस कहीं हो तो हमारे पास ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए तो हम उन सरप्राइजेस को फेस कर सकें. स्टेट बैंक इस पॉलिसी को फॉलो करता है. मेरे ख्याल में आज पिछले 200 साल में उस पॉलिसी में आज तक कभी चेंज नहीं. स्टेट बैंक ऑलवेज कंटिन्यूज टू मेक वेरी एग्रेसिव पॉलिसी. इसलिए आप देखेंगे नेट एनपीएज इन सब रेशियोज में स्टेट बैंक इज टू टेक थिंग्स अंडर ग्रिप्स. नहीं, सो आपने जैसे बोला था ना कि सर स्लिपेजेस में हो जाता है तो प्रोविजन भी बन जाती है, प्रोविजन गोज इनटू द पी&एल अकाउंट, राइट? तो इसमें ये भी होता है कि जो पीएनएल में नहीं जाता, पीएनएल में नहीं जाता. पीएनएल से पैसा लिया जाता है और प्रोवाइड किया जाता है और एसेट साइड में दिखाया जाता है कि सब ये प्रोविजन हमारे हैं, ये रिजर्व है हमारा डाउटफुल प्रोविजन, डाउटफुल एसेट्स के. Got it. नहीं, यहाँ पे ये भी है कि जो इसका जो प्रोविजनिंग है, पीसीआर, प्रोविजन कवरेज रेशियो जिसको बोलते हैं, वो 88% है एसबीआई का, which was 65% जो Q1 FY18 में था. So तो इतना ज्यादा प्रोविजन होने का मतलब सिंपल भाषा में ये है सर कि जो भी कचरा होना था और या जो भी प्रॉब्लम होना था उन्होंने उतना तो प्रोवाइड कर दिया. मैंने अभी जो आपको कहानी सुनाई थी उसका तात्पर्य यही था. स्टेट बैंक एज ए पॉलिसी बिलीव्स ऑन वेरी एग्रेसिव प्रोविजन. अगर कहीं भी डाउट है तो उसका प्रोविजन हमारे पास होना चाहिए और हम अपने प्रॉफिट से उतना पैसा अलग कर देंगे कि हमारा प्रॉफिट नहीं है. ये प्रॉफिट हमारी एसेट क्वालिटी को ठीक करने के लिए, एसेट अगर आगे खराब हो जाए उसको मीट करने के लिए ये पैसा अलग रखा. That is what has been. I mean, my time that was the policy, and I'm sure there has been no changes in that policy. So, I got it. So I understood this point. Very important point. ठीक है ना सर? तो प्रोविजनिंग भी समझ गए हम लोग, निम्स भी समझ गए, लायबिलिटी एसेट साइड भी समझ गए हम लोग, और कासा भी समझ गए जो आपने समझा दिया. आई थिंक दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमने रिकवरी स्लिपेजेस की बात किया. अभी सर आपने कहानी सुनाया तो मैं भी एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ आपको, ठीक है ना? मैं जिस धंधे में काम करता हूँ सर, तो अगर मेरे पास कोई भी आता है तो आने से पहले कम से कम 50 क्वेश्चन पूछेगा कि तू पैसा कैसे संभालता है, क्या करता है, टीम कितना बड़ा, एक्सपीरियंस कितना है, प्रूफ दिखा मुझे, ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर. मैं जब बैंक को पैसा देता हूँ सर, और मैं कितना भी पैसा डालूं बैंक में, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि वो बैंक किस ब्रांच मैनेजर वाला किसको पैसा दे रहा है? So is there any way an investor can know where does bank put their money so that the cases like Yes Bank,
does not happen again. देखिए ऐसा है कि अगर हमारा जो डिपॉजिटर है, पहले आप इसका क्वांटम समझिए कि कितना क्वांटम है। और मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं एग्जांपल स्टेट बैंक से दूं, क्योंकि स्टेट बैंक का मुझे एक्सपीरियंस है। हमारी स्टेट बैंक के 14,000 ब्रांचेस हैं और 14,000 ब्रांचेस में वी हैव more than maybe 50, 60, 70 million customers. 50, 60, 70 billion customers. All those accounts में जो डिपॉजिटर आते हैं वो जमा करते हैं और उसी हिसाब से हमारे पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ borrowers जिनको हम पैसा देते हैं। तो किसी भी कस्टमर के लिए जो डिपॉजिटर है उसको ये असेस करना कि हम पैसा जो दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, नहीं, I'm talking about borrower वाइज असेस करना, एक borrower वाइज असेस करना मुश्किल होगा, लेकिन वो कस्टमर ये जरूर देख सकता है कि अगर हमने इस बैंक में पैसा दिया तो बैंक ने ब्रॉडली कहाँ कहाँ पैसा डाला है। No, I'm talking from an analyst perspective, sir, not a person who deposits the money in the bank. I'm saying for an analyst, like जैसे आपने HDFC बैंक का एग्जांपल लिया, right? The reason why HDFC बैंक is successful कि वो they are very granular. उनका जो बिकॉज पैसा तो चलो ठीक है, जैसे आपने बोला ट्रस्ट पे आ जाएगा, बट पैसा देना और पैसा रिकवर करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो HDFC कोटक का मैंने देखा कि दे आर वेरी ग्रैनुलर इन देयर अप्रोच इन टर्म्स ऑफ छोटा लोन सबको दिया है। बट मुझे कैसे मालूम चलेगा कि सपोज करो किसी भी बैंक का 1,000 करोड़ का बुक है, वो 1,000 करोड़ की बुक में उसने एक किसी को 50 करोड़ का चेक काट दिया, 100 करोड़ का चेक काट दिया। एज एन एनालिस्ट आई एम टॉकिंग, इज देयर अ वे टू नो दैट? एज ए एनालिस्ट अगर आप किसी बैंक की बैलेंस शीट एनालाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2-3 चीजें देखनी पड़ेगी। हाँ, उस बैंक की कासा डिपॉजिट्स कैसे है। कासा डिपॉजिट ज्यादा होने का मतलब होता है कि द कस्टमर डिपॉजिटर्स ऑफ द बैंक हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रस्ट ऑन दैट बैंक, सो कासा डिपॉजिट्स इज वन इंडिकेटर। दूसरा कि क्वालिटी ऑफ एसेट्स कैसे, और क्वालिटी ऑफ एसेट्स में भी सब उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके जो बैंक के ऑडिटर्स हैं उनकी क्वालिटी कैसे है, क्योंकि जो बैंक खराब होते हैं उनकी भी ऑडिटर्स ऑडिट करते हैं। और आप देखिए कि जब भी बैंक खराब होने के पहले 2 साल पहले तक कुछ पता नहीं होता कि उनकी एसेट्स में, उनकी बुक्स में क्या खराबी है। अगर ऑडिटर उनको प्रॉपर्ली ऑडिट नहीं करता तो ये सब चीजें बैलेंस शीट में डिटेक्ट नहीं होता। तो एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए क्या है, नेट एनपीए क्या है, एंड क्वालिटी ऑफ ऑडिट क्या है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो एसेट्स जो उस बैंक में है वो उसमें कहीं कोई कंसंट्रेशन रिस्क तो नहीं है। ये सारी जो एसेट कुछ कंपनीज ने, कुछ एनबीएफसी ने तो एक पर्टिकुलर सेक्टर में लेंडिंग कर दी, वो सेक्टर किसी वजह से खराब हो गया तो वो पूरी कंपनी बैठ जाती। एनबीएफसी, कई एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गए जहां उन्होंने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग करी, मोस्ट ऑफ देम हैव कम टू सीरियस प्रॉब्लम्स। तो ये अगर एसेट जो किसी बैंक की है अगर वो डाइवर्सिफाइड तरीके से है, अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ओवर एक्सपोज नहीं है, तो ये एक एनालिस्ट के लिए ये चीज बहुत ध्यान से देखनी जरूरी है। चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस बैंक में क्या है। हायर द नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेटर द बैंक रिटर्न्स। रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है। बहुत सी बैंक्स ऐसी हैं जहां पर, माफ कीजिएगा, कोऑपरेटिव सेक्टर में है जहां पर डिपॉजिटर्स का पैसे से सैलरी पे की जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो बैंक कितने दिन चलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स, क्वालिटी ऑफ ऑडिट, क्वालिटी ऑफ एसेट्स, कासा, ये सब चीजें एक एनालिस्ट के लिए बहुत थरोली एनालाइज करने की जरूरत है। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट उस इंस्टीट्यूशन की कैसी है और उस इंस्टीट्यूशन की सक्सेशन प्लानिंग क्या है। बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग बिजनेस इज अ लॉन्ग टर्म। अगर मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है और मैनेजमेंट में लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है तो ऐसे इंस्टीट्यूशन के ऊपर किसी भी तरीके से ट्रस्ट करना बड़ा खतरनाक है। एज ए एनालिस्ट अगर आप पूछिएगा तो मैं इन चीजों को देखने में नो नो, गॉट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। सर दूसरा सर, ये
why do investors never trust PSU banks? No, and I'm not talking about SBI. Okay, now let me make it very clear. I'm just saying generally, since the privatization happened, we are talking about say last 40 years, and we have seen a remarkable difference between how private sectors took market share from public sector banks, and then NBFCs came over and they were a huge competition to the entire sector per se. What is your view on entire things? Because uh, we have seen a huge recapitalization to PSU banks in the past. There have been instances that many PSU banks have to be merged to save themselves into larger banks. Stronger banks like SBI has also taken a hit in the past in terms of bad loans and all. So I'm just saying that uh, is it right to even think as an investor कि मैं अगर पैसा सेव रखना ही चाहता हूँ तो why not Kotak or HDFC or private sector bank and not a PSU bank? Are you okay with that thought process of an investor? देखिए साहब, ऐसा है कि इन्वेस्टर जो है जो सोचता है, मुझे इस बात की देख के बड़ी खुशी है कि आप हमेशा एक चीज करें कि एसबीआई को मत जोड़िए, एसबीआई को अलग रखिए. आई एम वेरी हैप्पी टू No, no, but what you are SBI is saying. not a public sector bank for me, sir. It's a private sector bank for me. ठीक है ना? Let me disclose that as well. So आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस. लेकिन मैं आपको बताऊं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में दो तरीके की बातें हैं. एक तो ये कि जो एसेट क्वालिटी या एसेट क्रिएशन की जो प्रोसेस है उनके यहाँ, स्टेट बैंक के यहाँ हिस्ट्री रही है कि लोग, टॉप के लोग किसी भी जगह पर स्टैंड लेने में नहीं चाहते कि हम ये नहीं कर पाए या इसको करने में हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज हैं. Very well said. तो ये बहुत से लोग नहीं कर पाते. तो लेकिन स्टेट बैंक में फॉर्चुनेटली, barring a few honorable exceptions will always be there. Barring a few exceptions, chairmen have always been very strong. Not only the chairmen have been very strong, the management has been strong. In the state bank, there is a one unwritten culture that we always tolerate dissent. But then why do we need so many banks, sir? पुरवार जी, इतने banks क्यों चाहिए हमें? बाकी अभी तो fintech का भी तो इतने लोग आने वाले इंडिया में. We have not even seen so many fintech firms coming to India, right? जैसे आपने बोला ट्रस्ट की बात है, तो ट्रस्ट की बात है तो मैं वो 5वें 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें पीएसयू बैंक के पास जाऊंगा ही नहीं मैं. एक्चुअली साहब, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि इतने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की इस इकोनॉमी में जरूरत है. इस इकोनॉमी में 4-5 बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक है, 4-5 पब्लिक प्राइवेट दोनों मिला के 4-5 बड़े बड़े बैंक होने चाहिए जो ग्लोबल लेवल पे काम कर सके. एग्जैक्टली. 5-6 बैंक और होने चाहिए सेकंड टियर जो डोमेस्टिक काम अच्छा कर सके, और बाकी देयर शुड बी स्कोर ऑफ लोकल बैंक व्हिच शुड वर्क विद. इतने ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स की मेरे हिसाब से, आपकी बात से पूरा सहमत हूँ. लेकिन आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही टेक्नोलॉजी के बारे में. मैं आपको फिर मैं अपनी No, I wanted to get to that point of technology, sir, because I remember Mr. Kotak telling in an interview that we are not in a financial sector. We are into a technology. We are a tech firm, okay? We are not a financial firm, So he made it very, very clear. So, and there is a lot of threat of fintech coming to banks. To be honest, I'm surprised to read about how HDFC Bank has not been able to maneuver their credit card business in terms of technology, right? And we are hearing in European countries, US and all, there are banks even without any branches. It's no branches bank. It's all technology, all phone, everything, right? How does banks, and especially I want to say PSU bank, sorry, maneuver all this, And again, please, I'm not talking about SBI because, but let's have a wider thought process, not only SBI, but I'm saying it's a huge, huge competition, right, sir? देखिए, ऐसा है कि आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि कोटक जी ने ये कहा कि इंटरव्यू में, इट इज नाउ मोर अबाउट फिनटेक देन बैंकिंग. वेरी बिल्कुल सही बात कही. क्योंकि अगर आज आप देखें कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो इंटरनेट बैंकिंग और ATMs and so on, so many,
all financial products being available at one platform. It's a completely different institution by type of banking which we are seeing. लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि कितना भी आप टेक्नोलॉजी बैंकिंग में ले आए, कितनी भी, जो 1-to-1 जो कस्टमर बैंकर का इंटरफेस है उसको आप खत्म नहीं कर सकते। आप कस्टमर हैं बैंक के, आप भी पसंद करते हैं कि साल में एक बार 2 बार बैंक जाकर के भाई टाइम 2-4 मिनट के लिए लगा करके टेलीफोन से लगा करके करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत से एक आफ्टर अ सर्टेन एज एंड बिफोर अ सर्टेन एज हर आदमी चाहता है कि भाई मैं जहाँ पैसा रख रहा हूँ, कहाँ रख रहा हूँ, सेफ है कि नहीं, मैं पैसा निकाल रहा हूँ। ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया में ही टेंडेंसी नहीं है, दिस इज द टेंडेंसी थ्रू आउट द। आप यूएस में भी जाइए जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस लेवल की, लेकिन इसके बावजूद भी बैंकिंग ब्रांचेस हैं, कस्टमर्स वहाँ जाना पसंद करते हैं, डील करना पसंद करते हैं और करते हैं। लेकिन ये आपकी बात सही है कि प्रोग्रेसिवली टेक्नोलॉजी इज रिप्लेसिंग द ह्यूमन टच इन ह्यूमन फेस, ये आपकी सही बात है। लेकिन आप ये बात जान के आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि स्टेट बैंक एक पीएसयू बैंक होते हुए भी इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी इज रेटेड एज वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्योर बैंकिंग। मुझे ऐसा लग रहा है सर, अगर भाभी पास में होती तो बोलती कि एसबीआई तो मेरी सौतन है, आप इतना प्यार करते हो एसबीआई से इतना प्यार करते हो एसबीआई से कि it's good to see that loyalty, you know, after 40 years and that rich loyalty, you know, कि proud जो होता है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। सर, 2 चीजें जो जरूरी हैं एज अ बैंकिंग इन्वेस्टर, यू नो, हमें एज अ इन्वेस्टर जो आपसे समझनी जरूरी है, बिकॉज आपको इतना 40 साल का एक्सपीरियंस है। सो मैं एक राकेश झुंझुनवाला जी का इंटरव्यू सुन रहा था सर, तो उन्होंने बोला कि एक क्रेडिट साइकिल जो टर्न होता है वो 8 से 10 साल में होता है। यू नो, आपका क्या मानना है सर, क्योंकि हमने ग्रोथ देखा नहीं है बैंक्स में 8-10 साल से, और ऑनेस्टली इंडिया में बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं लास्ट 6-7 साल में, डीमॉन, रेरा, जीएसटी, एनबीएफसी क्राइसिस, बहुत चीजें हुई हैं। सो यू नो, एंड वी हैव सीन अ लॉट ऑफ क्लीन अप आल्सो। आपको क्या लगता है सर कि आर वी नाउ स्टैंडिंग एट अ पॉइंट जब ये क्रेडिट साइकिल टर्न हो रहा है, कि अभी टाइम और लगेगा? I also remember him talking about saying कि credit growth could be 15%, 15%. Do you agree or not agree, sir? साहब, मैं जिस जमाने में था तो हम लोग के नॉर्मल क्रेडिट ग्रोथ 16%, 17% था। Sorry? जो इस जमाने में हम लोग थे, उस जमाने में क्रेडिट ग्रोथ यूज्ड टू बी 16 to 17%, which used to be normal credit growth. एक्चुअली हुआ क्या है कि जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स जो ग्लोबली स्ट्रेंथन किए गए, उसका एक असर आया है। दूसरा ये कि अगर आप इंडियन इकोनॉमी को ध्यान से देखें तो सिवाय एक आईटी इंडस्ट्री को छोड़कर, जिसने बहुत बिजनेस, बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है, हमने फ्यूचरिस्टिक कौन सी इंडस्ट्री अपने यहाँ इनकरेज करी है और सेटअप? आई मीन एज ए बैंकर आई फील सैड कि बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक काम जो शायद हमारी इंडस्ट्री में होना चाहिए था, वो आईटी इंडस्ट्री के अलावा और किसी भी इंडस्ट्री में हम नहीं कर। सर, हेल्थ केयर में किया सर। हेल्थ केयर में वी आर स्टिल फार फार्मा, आई नो हेल्थ केयर इज नॉट द राइट वर्ड। फार्मा में लिमिट, हाँ लिमिट ठीक है, नॉट लाइक यू नो द ग्लोबल एमएनसी फार्मा कंपनी। चलो ठीक है, आई टेक योर पॉइंट। आप आईटी इंडस्ट्री को देखिए कि और आईटी कंपनीज आर टुडे कंपीटिंग विद द बेस्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, क्या हम ऐसी 10 इंडस्ट्रीज अपने यहाँ नहीं क्रिएट कर सकते? ये एक बड़ी समस्या है। तो जो क्रेडिट ग्रोथ है वो है क्या? क्रेडिट ग्रोथ जो है वो इससे लिंक्ड है कि आपके यहाँ नए बिजनेसेस, नई इंडस्ट्रीज, नए सर्विसेज बिजनेसेस शुरू हो रहे हैं, उनकी क्रेडिट डिमांड आ रही है, उनकी क्रेडिट डिमांड मीट करने के लिए बैंकिंग सिस्टम उनको पैसे दे रहा है।
आज ये समस्या है कि हमारे यहाँ पिछले कई सालों से नहीं, but do you think, sir, with your experience and of course analysis, that इंडिया में 15% का जो एनवायरनमेंट है क्रेडिट ग्रोथ का दोबारा वापस आ सकता है, जैसे आपने बोला कि आपके टाइम में 16-17% होता था? मेरे ख्याल में बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसके लिए जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ है, इट हैज टू बी मच मच मोर। जो आज के दिन इन सेक्टर्स की ग्रोथ है, माफ कीजिएगा, क्या है ग्रोथ? इस साल हम लोग जीडीपी की ग्रोथ में भी -7%, -8% इन 2021, 21-22 वी डू नॉट कहां पर हम लोग खड़े हों। इस एनवायरनमेंट में आप कहां से क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिवाय रिटेल क्रेडिट के? लेकिन रिटेल क्रेडिट की ग्रोथ भी लिमिटेड होगी, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा, जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे, लोगों को काम नहीं होगा, तो लोग हाउसिंग के लिए, कार के लिए लोन क्यों लेना पसंद करें? सही तो इस वक्त तो बट नेक्स्ट 2 years, सर, नेक्स्ट 2 years, नो सर, नो। देखिए, क्रेडिट ग्रोथ 15-16% के लिए नेक्स्ट 2 years आई डोंट थिंक वी कैन डू इट। आई डोंट थिंक वी शुड डू। got it. सर, दूसरा चीज है पीएसयू बैंक्स पे, अभी थोड़ा सा एसबीआई को साइड पे रख देते हैं। Do you think PSU banks can regain the lost glory? कि बाकी एज आई सेड एसबीआई को साइड पे रख देते हैं बिकॉज मेरे लिए वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है एट अ प्राइवेट सेक्टर बैंक है एट अ पब्लिक सेक्टर वैल्यूएशन, सॉरी, यू नो, बट उसको मैं आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ पीएसयू बैंक्स माइनस एसबीआई, कि आपके हिसाब से पीएसयू बैंक्स का हो सकता है कि वापस वो उस ग्लोरी में आ जाए? डू यू थिंक? और ये प्लीज आप डोंट बी, नहीं, No way. I don't think that they will ever come back to past. Rather, my feeling is that some of the consolidation जो हो रहा है, उसमें भी बहुत ही स्मूथ कंसोलिडेशन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हम नहीं कर पाए। तो पब्लिक सेक्टर के ओल्ड ग्लोरी सवाल ही नहीं। आपने ये कहा कि स्टेट बैंक अलग है, मैं मानता हूँ स्टेट बैंक अलग है और अलग ही रहेगा, लेकिन अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, barring one or two, I don't think that old times are going to come what back. are those barring one or two, sir? Sorry, what are those other two barring one or two? Let us not take names. I mean, in the interview, let me. I will. आप प्राइवेटली 1-to-1 पूछेगा, मैं बता दूंगा आपको। नहीं, पर मैं आपको नहीं, पर सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगेन मैंने एक इंटरव्यू सुना था राकेश जी का, तो उसमें उन्होंने बोला था कि जैसे कैनरा बैंक है, यू नो, एंड इट्स डिस्क्लोज्ड टू एवरीवन दैट ही होल्ड्स द, यू नो, स्टॉक। ही सेड दैट आज की टाइम में कैनरा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का अगर आप देखो तो वैल्यूएशन डिफरेंस बहुत रेडिकुलस है, ही यूज दिस वर्ड, क्योंकि उनका लोन बुक साइज बिल्कुल सेम है आईसीआईसीआई और कैनरा का। आईसीआईसीआई का मार्केट कैप कुछ 5 लाख करोड़ है और इसका मार्केट कैप कैनरा का कुछ 25,000 करोड़ है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो आईसीआईसीआई बैंक की 40% है और कैनरा की 55% है, जो एक्सपेक्टेड है अगले कुछ सालों में जाके नीचे 40% आ जाएगी। ही वाज क्लियर दैट इतना डिफरेंस नहीं हो सकता। आई एम सेइंग एज एन एनालिस्ट इट इज राइट टू कंपेयर दिस वे, और इज इट लाइक यार ये थोड़ा ज्यादा ही सोच रहे हैं? देखिए साहब, ऐसा है कि जुनियनवाला साहब की अपना एनालिसिस होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो आपको 5-6 पैरामीटर्स बताए, अगर किसी भी बैंक में एसेट क्वालिटी, कासा डिपॉजिट्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड क्वालिटी ऑफ ऑडिट, अगर ये सब पैरामीटर्स आप कंपेयर कर लीजिए तो आपको ये समझ में आएगा कि देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आईसीआईसीआई बैंक एंड कैनरा। तो वैल्यूएशंस क्या कहते हैं? Got it. So you are advocate of only private sector banks and SBI and nothing else? No, I would like at least 4 to 5 strong public sector banks to emerge. I would very love that happens, but maybe 1 or 2 I can see it coming, but I do not. I wish I could see the future, but I'm not able. It doesn't look like that it could be 5 banks like SBI which are competing in domestic market and complementing each other in the global market. So I understood that you're saying credit growth of 15% is not very easy in the next 2 or 3 years, right? One thing. Second thing, do you think the worst in terms of asset quality deterioration is over for PSU banks now? Yes and no, both.
Yes, in the sense that if the vaccination proceeds smoothly, we are able to vaccinate the entire Indian public in next 6 months' time, we are able to take control of this pandemic, then yes, things will look up. Otherwise, maybe in March 22, when we sit down and talk again, we do not know where the asset quality of the banking system is there. But my gut sense is that burst for the banking system is almost over. Okay, because we have seen almost all the stupid cases which could happen in the last 1 year, right? क्योंकि अभी तो सबको डर लगने लगा है सर कि अभी तो कोई साइन करता ही नहीं है, अभी मालूम है कि हमें सीबीआई वाला जेल में डाल देगा, राइट? अभी तो सबको डरने लग रहा है, पहले होता था सब कुछ होता था, बट अभी तो डर लग रहा है सबको. सो वी हैव सीन ऑल द केसेस. आई थिंक प्रोविजनिंग जैसे आपने बोला और आपने सिखाया that most of the PSU banks or have done provisioning in the last 10 years. I think some of the provisioning done by PSU banks could be even higher than HDFC or ICICI Bank also, right? Absolutely, absolutely. And I am sure of SBI that SBI must have made much more provisioning than whatever is statutorily or regulatory requirement. So I'm just saying that if as an investor I understand that जो बुरा चीज था वो already over हो चुका है, provisioning कर दी है. The only wait is for the credit growth, right? And of course the competition. How do you maneuver the competition in terms of new people, private sector banks, and technology? Let me digress. Okay. आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ क्रेडिट ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, देखिए आगे क्या होने वाला है. आगे जैसा लगता है मुझे कि टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन will gather further steam in the entire banking system. One of the results of this will be that there will be substantial cutting down of the costs. That's one aspect. Two, कि पिछले 15 साल से एक बहुत बड़ा ट्रेंड बैंकिंग आया है, 15-20 साल से. पहले बैंकिंग सिस्टम सिर्फ डिपॉजिट्स और एडवांसेस की बात करती. आज आप स्टेट बैंक में जाइए और स्टेट बैंक ग्रुप को देखिए. स्टेट बैंक में क्या है? State Bank runs the second largest life insurance company of the country, SBI Life. State Bank runs the largest mutual fund of the country, SBI Mutual Fund. State Bank runs the largest credit card company of the country, SBI Cards. तो हो क्या रहा है कि जो बैंकिंग नेटवर्क है, बैंकिंग नेटवर्क is not confined only to distribution of banking products, pure banking products. It has become a distribution network of whole range of financial products. आप किसी भी SBI branch में जाइए, they would be selling SBI Life, they would be selling general insurance, they would be selling mutual funds, and not in a passive way, rather in a very somewhat aggressive way. तो जो financial system है, वो पुराना financial system अब शायद नहीं रहा और होना रहना भी नहीं चाहिए. अब वो जो नया financial system है, उसमें एक ब्रांच, एक जगह पर, या स्टेट बैंक का यूनो प्लेटफॉर्म देखिए, एक प्लेटफॉर्म पर होल रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आर गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड. सो व्हाट विल हैपन? जो बैंकिंग सिस्टम में जो इन्वेस्टमेंट है ब्रांच नेटवर्क का, जो टेक्नोलॉजी का, उस नेटवर्क का जो लिवरेजिंग होगी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट. और वो एक जो बैंकिंग के लिए एक बहुत बड़ा नया क्यों ऑलरेडी है, ऑलरेडी काफी सब्सटेंशियल इनकम इससे हो रही है, बहुत बड़ी इनकम इससे जनरेट. Got it. No, I think it's very important point what you mentioned, and everything comes from trust. जो आपने पहला शब्द बोला था कि बैंक्स में सबसे पहले एक ही चीज जरूरी है, वो है ट्रस्ट, और इसी ट्रस्ट के कारण ये डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है. सर, माय लास्ट क्वेश्चन, आप you also wore a hat in terms of an industry into NBFCs also, right? I think you were part of Piramal Finance. Yes, I was. Now help us to explain, if I say banks versus NBFCs, how do we stand there? Because NBFCs also, we have seen a lot of cleaning up happening, a lot of cases which has happened in the past. How do you see the entire NBFCs versus banks? And in a simple language, अगर मैं बोलूं सर कि मैं अगर पैसा डालूं तो आप मुझे क्या बोलोगे, मैं बैंक्स में डालूं कि एनबीएफसी में डालूं? देखिए ऐसा है कि जहां तक एनबीएफसी सेक्टर का सवाल है,
उनको डिपॉजिटर से पैसा लेना ऑलमोस्ट बंद हो गया है। जो नई जो पुराने एनबीएफसीज हैं वो डिपॉजिटर से पैसा ले रही है, लाइक एचडीएफसी। बट मोस्ट ऑफ द एनबीएफसीज हैव बीन टोल्ड दैट दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, क्योंकि उनके अपने इश्यूज थे, डिफरेंसेस। लेकिन देखिए, चूंकि मैंने एनबीएफसी सेटअप की है, उसको 8-9 साल चलाई है, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट एनबीएफसी में बोर्ड में मैं आज भी बैठता हूँ, तो दोनों का अपना अपना रोल, बैंकिंग सिस्टम का एक अपना रोल है और एनबीएफसी का एक अपना रोल है। एनबीएफसी में वी कैन बिकम मोर एग्रेसिव, वी कैन बिकम मोर फोकस्ड। हम लोग इंडस्ट्रीज पे फोकस कर सकते हैं, बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं और उसमें एक अपनी निश बना सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम में उसकी अपना एक पैराफर्नेलिया है, उसके अपने सिस्टम्स हैं, उनके अब प्रोसेसेस हैं which they have to follow. NBFCs can be far more flexible in meeting the requirements of customers, going out of way to meet certain customers, take additional risk to meet certain requirements of customers. तो दोनों का अपना रोल है और दोनों की इकोनॉमी में बहुत जरूरत है। Got it, sir. Got it. तो पुरवार जी, जाने से पहले मैं एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करता हूँ आपके साथ, तो थोड़ा सा मजा भी आएगा। छोटा सा रैपिड फायर राउंड है सर। आई विल ओनली रिक्वेस्ट यू कि आप एक ही शब्द बोलना, बाकी जल्दी जल्दी करते आपको ही मजा आएगा, राइट? सर, वन वर्ड फॉर एसबीआई। ट्रस्ट। मालूम था। एसबीआई और एचडीएफसी, अगर आपको अभी चांस मिले कि आप किस इस बैंक को चलाओ, आप आगे चलाओ, एंड यू बी एट द हेल्म ऑफ दैट बैंक, विल यू चूज एसबीआई और एचडीएफसी? एनी टाइम एसबीआई। Okay, best banking CEO for you, who has run the bank for you, ex SBI, आपके लिए इंडिया में आपके 40 साल के एक्सपीरियंस में वो कौन है सर, जो जिसकी आप इतनी इज्जत करते हो कि he is the best guy from whom I have learned? Let us not talk of bank, let us talk of Indian financial system. Deepak Parekh. Deepak Parekh, very good. Which is the group, sir, in India which you think is the best group to deal with when you were with SBI? कि बॉस, इनसे पैसा हमें हमेशा आता था। टाटा ग्रुप। Which is the worst group जो आपने जिससे डील किया, जिसको लगता था बॉस इसको पैसा नहीं दे रहे? ये इसका जवाब मैं आपको फिर कभी दूंगा। इतना बोल दिया तो सर बोल दो, कोई बात नहीं। नहीं, मैं इस क्वेश्चन के जवाब आप समझ सकते हैं। नहीं, प्रभात जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक यू मेड थिंग्स वेरी इजी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो इसको देखेंगे एपिसोड को। बहुत दिल से आपने हमें बहुत सिंपल चीजें समझाई, एंड दीज आर द बेसिक्स फॉर एनीवन हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन द सेक्टर। अगर हम इन्हीं छोटी छोटी चीजों को सीख जाएंगे, आई थिंक तब हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं। धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। अरे नहीं सर, बात करने के लिए, एक लार्जर फोरम, लोगों से बोलने के लिए, और खास तौर से 2-4 अच्छी बातें कहने का मौका एसबीआई के लिए आपने मुझे इसका मौका दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव द वे यू आर सो विद एसबीआई। मुझे अच्छा लग रहा है कि इतना साल काम करने के बाद भी यू आर सो मच इन लव विद एसबीआई। इट्स ग्रेट थिंग। It tells you a lot about the organization. It tells you so much about the organization. It is mutual. आज भी अगर स्टेट बैंक में मैं कोई भी छोटी सी बात कहता हूँ, वो तुरंत की जाती है, लेकिन मैं कभी कहता नहीं हूँ ये बात अलग। लेकिन अगर कभी कहता हूँ तो अभी भी वो लोग कोशिश करते हैं वो तुरंत। Nice sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. मजा आ गया पुरवार जी, बहुत मजा आया मुझे। धन्यवाद। Thank you so much.